Good evening, everyone. I am Dr. Payal. Now we are again here for the next session of our NEP program for our staff nurses. And I'm really very sorry for the technical errors and the delay of today's session. So I'll be just giving a short introduction for our speaker today. And she is Dr. Kakoli Roy. We are doing another session with her. She is a practicing clinical psychologist here in Bhopal, associated with Her Health, and she has a she's doing this job since last 41 years. Her qualification, she's at doctorate level. She has MA applied psychology. She has done various fellowships and recognitions. She has overall 41 year of experience to her credit, and without any delay I will directly ask her to start her presentation because we are really late today. The mic, the screen is yours, Dr. Kakoli ma'am. We welcome you with great heart, and we are very eager to hear you this time as well. Thank you so much, Dr. Payal. In fact, I'm really thankful to you and Dr. Priya Bhave, uh, uh, to bring me here in this platform at this platform. Uh, yes, this delay is because of me. The technical issue is from my side, so I'm really sorry for this delay. Today's uh, topic is stress management. uh, I will start with the thing that what is stress. Stress आसानी से सब लोग बोल देते हैं कि yes बहुत stress हो रहा है, बहुत stress हो रहा है. Actually, what is the definition? What does it mean? Is the stress is in our environment? Actually, no. Stress is the response of the body to sudden and or अनएक्सपेक्टेड लाइफ इवेंट्स. कभी भी लाइफ इवेंट कुछ भी होता है उसको हम कैसे देख रहे हैं, हम हमारी बॉडी कैसे उसको रिसीव कर रही है, दैट परसेप्शन मेक्स अस इन टुवर्ड्स स्ट्रेस. द मॉडल इज लाइक दैट. Any life situation, whatever incidents happen in our surrounding, we see it and we perceive it. If we perceive it as stressful situation, like oh ab kya hoga, it is just very bad, oh it is I don't know how can I do it, like अभी अभी जो मैं नहीं कर पा रही थी एंड टेक्निकली मैं आपके सामने नहीं आ पा रही थी, इट वाज अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन फ्रॉम माय साइड एंड आई वाज सीइंग इट कि यस आई एम अनेबल टू डू इट. तो ऐसा जब परसेप्शन हमारा होता है तो हमारे इमोशनल अराउजल होने लगते हैं. ना वी गेट वेरी एंशियस, वी गेट वेरी हेल्पलेस, वी गेट वेरी we don't understand what to do and from where I can get help. And when emotional arousal happens, then what happens? Then our physiological arousal also happens because it is directly associated with our physiology. And our physiological arousal, like our blood pressure, like our respiratory system, like our heart rate, everything increases. And because of these physiological rays of our body, we function differently. And that is actually stress. When our body responds to the environment or the situation, whatever the consequences are, however we are behaving, that is stress. And when it is accumulated in us, like we cannot release it. No, it is. I'll explain with a small example. Like you all are working and in hospitals, so you do your duties are for different hours. मान लीजिए कि आप में से किसी ने एक पूरे दिन ड्यूटी किया है, डे ड्यूटी, एंड यू went home and you are in the dining table with your family and eating dinner, and that time suddenly you get a call from your doctor.
So what is the perception? ओ फिर से डॉक्टर का फोन आ रहा है, what will happen? फिर से कोई इमरजेंसी होगा, मुझे जाना पड़ेगा शायद, मैं खाना भी नहीं खा पाई, और उसके बाद टुमारो माय चाइल्ड हैज अ मंथली टेस्ट, आई आई वाज सपोज्ड टू टीच हिम, और मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं कैसे उठाऊं या नहीं उठाऊं, मैं उठाऊंगी तो मैं अभी फिर से मुझे जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, एंड so many thoughts coming in inside, and my emotional arousal happens. एक हमारी कलीग हैं जो बिल्कुल वैसे ही सोच रहे हैं, लेकिन उनको भी वही कॉल आया है, वो भी डिनर टेबल पे बैठे हैं, एंड शी गेट्स अ कॉल एंड शी थिंक्स कि ओके, मैं अभी अभी तो आई थी, अगर कॉल आया है तो मैं उनको फोन करके बोल दूं क्या कि मुझे थोड़ा तो टाइम दे दीजिए, आई विल रीच ऑन टाइम, बट आई डू माय रूटीन थिंग्स एंड देन आई गो। सो परसेप्शन जैसे ही चेंज होता है, आप देखोगे इमोशनल अराउजल और फिजियोलॉजिकल अराउजल अलग अलग होता है, एंड दैट्स वेयर कुछ लोगों को सेम लाइफ सिचुएशंस में स्ट्रेस होता है और कुछ लोगों को सेम लाइफ सिचुएशंस में स्ट्रेस नहीं होता। What I am trying to explain कि it is our thoughts, it is our perception, it is uh, our taking things within us, the way we take it, the way we perceive, it depends upon how we really going towards stress or not. So very important is that हमारे इस परसेप्शन को जब मैं उसमें आऊंगी कि हाउ टू गेट रिड ऑफ इट, तो मैं इसको जरूर लाना चाहूंगी कि हम अपने परसेप्शन को कैसे चेंज करें ना। सिचुएशन, लाइफ स्ट्रेसर्स आएंगे, सबके जीवन में आएंगे, बट हाउ वी टेक इट, इट डिपेंड्स अपॉन आवर परसेप्शन। सो आप लोग सब मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, आई नीड नॉट explain too much about it. I'll just go through how stress causes harm to our body. As you see this slide, emotional stress directly, as I said, physiological imbalances होने लगते हैं, और physiological imbalance होने से physical diseases होने लगती हैं। Physiological imbalance में, as I said, कि respiratory system हमारा हाई हो जाता है, blood pressure हाई हो जाता है, हार्ट रेट हाई हो जाता है, मसल स्टिफनेस बढ़ जाती है, पर्सपिरेशन होने लगता है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होने लगती हैं। और ये सब अगर रिलीज नहीं हो पाते, ठीक नहीं हो पाते, देन साइकोसोमैटिक डिसीजेस, आप सबने सुना होगा, साइकोसोमैटिक डिसीजेस इसकी वजह से होने लगते हैं। दूसरी तरफ इमोशनल स्ट्रेस, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से जो हमारा रेजिस्टेंस पुअर होने लगता है, हमारा इम्यून सिस्टम पुअर होने लगता है, और जब इम्यून सिस्टम पूरा पुअर होता है तो हमारे अंदर माइक्रोब्स अटैक बहुत आसानी से कर पाते हैं, एंड जब ऐसा होता है तब भी हमें फिजिकल डिजीजेस बहुत जल्दी हो जाता है, यू ऑल नो दैट। सो बिकॉज ऑफ इमोशनल ऑनसेट ऑफ स्ट्रेसेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं और इम्यून सिस्टम पर वो अटैक करता है, जिसकी वजह से भी फिजिकल डिजीजेस होने लगते हैं। एंड थर्ड, जो जिस तरह से होता है ये हमारे बॉडी को इफेक्ट करता है, वो है जब लॉन्ग टर्म में ये सारी चीजें रहती हैं एंड वी आर अनेबल टू गेट रिड ऑफ इट, देन एलर्जीज हो सकते हैं, इवन द कैंसर आल्सो कैन बी द रिजल्ट ऑफ इट because of all these physiological changes. How our body responds to stress? We all know about nervous system. Now I'm talking about autonomic nervous system, और हम सबको पता है the sympathetic and parasympathetic nervous system के बारे में. This now what I am talking about is sympathetic nervous system, which is called a fight or flight phase also. Whenever we see some stressor in our life,
in our life situation and we perceive it like that, then our sympathetic nervous system actually activates. और जैसा मैंने बताया है कि हार्ट रेट इंक्रीज होता है, रेस्पिरेशन इंक्रीज होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, मस्कुलर टेंशन ऑफ लिम्स होने लगते हैं, पसीना आने लगता है बहुत ज्यादा, मेंटल एक्टिविटी बहुत बहुत तेज, यानी हम समझ भी नहीं पाते हैं कि कितना ज्यादा माइंड यहाँ से वहां, वहां से वहां घूमने घूमने लगता है, प्यूपिल्स डायलेटेड एंड हमारा चेहरा अलग हो जाता है और इवन हमारा सलाइवा सिक्रेशन इंक्रीज हो जाता है। ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली जैसे ही वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन आता है और हमारा परसेप्शन होता है, चेंजेस होने लगते हैं, तो ये हमारा ब्रेन ये सारा चेंजेस हमारे अंदर करने लगता है। बिल्कुल इसको ऑपोजिट पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है, जो कि हम लोगों को शायद जब हम लोग इनके प्रिवेंशन या क्योर की बात करेंगे तो जरूर इनको देखेंगे कि इनका उल्टा है, जहां हम रिलैक्स फील करते हैं, जहां नॉर्मल हार्ट रेट होता है, रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल होता है, ब्लड प्रेशर रेट नॉर्मल होता है, मस्कुलर टेंशन नॉर्मल होता है, सारी चीजें नॉर्मल होती हैं, वहां पर पैरासिम्पैथेटिक होता है। तो कहीं ना कहीं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हमारा अराउज हो जाता है, उसकी वजह से हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं और वी वी फाइट एंड फ्लाइट मोड में आ जाते हैं हम लोग, या तो भागो या फिर बचो ना, फ्लाइट करो या फिर फाइट करो, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। इफ वी कैन डू इट तो हम लोग वापस पैरासिम्पैथेटिक में आ जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन आवर डेली लाइफ रूटीन द स्ट्रेसर्स आर लाइक दैट कि हम लोग ये कर नहीं पाते। जैसे बॉस ने डांट दिया, या वर्क सिचुएशन में कुछ इंसल्ट हुआ, या कुछ लगातार कुछ हमारे वर्क को बोला गया या किया गया और हमारे अंदर ये सारी चीजें इकट्ठा हो रही हैं, हमारे अंदर जमा हो रही हैं और हम जवाब नहीं दे सकते, फाइट एंड फ्लाइट नहीं कर सकते, नौकरी छोड़ के नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते, एंड दैट टाइम इट अराउजेस एंड स्ट्रेस हैपेंस एट दिस लेवल। ऐसे ही घर में अगर कोई ऐसा सिचुएशन है बहुत स्ट्रेसफुल, या हमारे हमारे आसपास बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है और जिसको हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, उसमें हमारा इस तरह का एक्टिवेशन बढ़ता चला जा रहा है या सस्टेन कर रहा है, और ऐसे में स्ट्रेस हैपेंस और आवर बॉडी रिस्पॉन्ड्स लाइक दैट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हम डायरेक्टली देख रहे हैं कि हाउ आर स्ट्रेस के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। हम लोग स्ट्रेस वर्ड इज एक्चुअली वेरी कॉमन, आजकल बच्चे भी कहने लगे हैं कि मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है ना, अगर उनको डांट दो तो स्ट्रेस हो जाता है। तो स्ट्रेस के सिम्टम्स जो होते हैं वो मैंने यहाँ पर सब लिखे हैं, जो सब ऐसा दिखता है कि फिजिकल है ना, टेंशन हेडेक हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, स्टमक एक हो सकता है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर होता है, अगर लगातार ये स्ट्रेस लेवल बना रहे तो ब्लड प्रेशर हो जाता है, कोल्ड हैंड्स, स्टमक एसिडिटी, शैलो रैपिड ब्रीदिंग। आपने देखा होगा कि कई लोग जब एंजाइटी में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो बिल्कुल बहुत रैपिड ऐसा करके सांस लेने लगते हैं और वो ठीक से सांस ले ही नहीं पाते। ऐसे ही डायरिया हो सकता है और कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, पैल्पिटेशन बहुत बढ़ जाता है, शेकी हैंड्स हो जाते हैं, जब हमारे मसल्स बहुत टाइट हो जाते हैं तो एक ट्रेमर्स आने लगता है हमारे हाथ में, हमारे हाथों में, लिम्स में, लोअर लिम्स और अपर लिम्स में, और हमारे हैंड्स शेक करने लगते हैं। डिस्टेंशन, गैशियस डिस्टेंशन होने लगता है, बर्पिंग होने लगती है, कई लोगों को कोई फिजिकल सिम्टम्स या कोई फिजिकल कॉज नहीं होता है, लेकिन ये डिस्टेंशन एंड बर्पिंग होता है बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। फ्रीक्वेंट अर्ज ऑफ यूरिनेट, ये तो शायद बहुत लोगों ने काफी बार महसूस किया होगा, जब एग्जाम के पहले का स्ट्रेस होता है या एग्जाम
कोई भी इंटरव्यू के पहले का स्ट्रेस होता है, तो बहुत अर्ज टू यूरिनेट होता है, या फिर हमें स्टेज पे कभी जाना पड़ता है, उसका स्ट्रेस होता है। तो इस तरह की चीजें, एक पेट में अजीब सा लगता है, यूरिनेट करने का मन करता है, क्लैमी हैंड्स एंड फीट होने लगते हैं। ये सारी चीजें शायद हम लोग बहुत बार महसूस करते हैं, बहुत बार हम लोग देखते हैं अपने साथ भी होता है। पर जब हम लोगों का वो काम हो जाता है तो ठीक हो जाता है। तो इट इज फॉर दैट मोमेंट। एग्जाम के पहले होता है, एग्जाम के बाद ठीक हो जाता है, स्टेज में चढ़ने से पहले होता है, उसके बाद ठीक हो जाता है। तो दीज आर कॉमन, बट वी कॉल इट नॉर्मल। But if it happens again and again, and if it happens persistently and consistently, then हम लोग इसको स्ट्रेस का नाम देते हैं या एंजाइटी का नाम देते हैं। और फिर हम साइकोसोमेटिक डिजीजेस या फिजियोलॉजिकल बहुत सारे डिजीजेस देखते हैं। इस लिस्ट में और भी हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बहुत जल्दी एग्जॉशन हो जाना, फैटिग लगना, ड्राई माउथ, backache and neck stiffness. Neck stiffness is very common. We understand that there's some problem in our neck, और हम दिखाते रहते हैं, ऑर्थोपेडिशियन को दिखाते रहते हैं, बट उसमें जब कुछ भी नहीं आता है तब समझ में आता है कि इट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। हमारे मसल्स अराउंड आवर नेक बोन्स इतने स्टिफ हो जाते हैं कि वो एक्स एंड पेन्स कंसिस्टेंटली बने रहते हैं। और कई बार वो मतलब बहुत ज्यादा इवन डिजीनेस होने लगती है, प्रॉब्लम्स होने लगती हैं उसके लिए। टाइटनेस इन चेस्ट, डिजीनेस, नौशा, वॉमिटिंग, मेंस्ट्रुअल डिस्ट्रेस बहुत ही कॉमन है, आप सबको पता है कि बिकॉज ऑफ स्ट्रेस इट हैपेंस। एस्थमा वी ऑल नो, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस इट हैपेंस। High blood pressure we know, arthritis, skin allergies, blemishes, colitis, hyperventilation, जॉ पेन, इंडाइजेशन, कैंसर। यहाँ जॉ पेन की बात भी मैं करूंगी। कुछ पेन्स एंड पेन्स, एक्स एंड पेन्स बहुत पर्टिकुलरली स्ट्रेस रिलेटेड होते हैं। लाइक आई सेड नेक, लाइक आई सेड जॉ पेन। हमारे जॉ के जो मसल्स होते हैं वो बहुत टाइट हो जाते हैं व्हेन वी आर अंडर स्ट्रेस, और वो हमें पता भी नहीं होता है। बट अगर हम इसको रिलैक्स करते हैं तो हम देखते हैं कि वो पेन चला गया है। इंडाइजेशन, कैंसर, मतलब सब कुछ हो सकता है बिकॉज ऑफ दीज फिजियोलॉजिकल चेंजेस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हम डायरेक्टली देख रहे हैं, नहीं इसके पहले एक और स्लाइड है शायद। No? Okay. Okay, it's all right. So all these diseases and symptoms, we can see that these are happening because of stress, and these stress are so powerful. Our response, our body response are so powerful that we are unable to control it in time. मैं बहुत लंबा नहीं लेकर मैं इंटरवेंशन में थोड़ा टाइम लेना चाहूंगी कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज बिहेवियरल स्टिमुलेशन फॉर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। जैसा मैंने पहले कहा था कि सिंपैथेटिक सिस्टम में सब अराउजल्स होते हैं, इसको अगर बदल दिया जाए तो वी गो इनटू पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, एंड हमको वो स्टिमुलेट करना है। हाउ टू डू इट? ऐसा रिसर्चेस हुए हैं, ऐसा देखा गया है कि व्हेन आर, अगेन आई एम नेमिंग इट, कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हाई हो जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, मसल टोन बहुत स्टिफ हो जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, पर्सपिरेशन, बहुत पसीना आने लगता है। मान लीजिए ये 5 हैं, और भी हैं, बट मान लीजिए ये 5 हैं। रिसर्चर्स कहते हैं कि अगर इनमें से कोई एक को अगर हम डाउन कर सकें, एक के अराउजल को अगर हम डाउन कर सकें, तो और बाकी 4 भी, बाकी सारे भी अपने आप ऑटोमेटिकली डाउन हो जाते हैं, एंड वी गेट रिलीफ। दैट सीम्स टू बी इजियर। तो हम लोग, मैं एग्जांपल दे रही हूँ जस्ट एक रेस्पिरेटरी का। एज आई सेड कि ऐसे समय में हमारा
ऐसे ऐसे सांस हम लेने लगते हैं बहुत तेजी से। अगर नॉर्मल भी देखा जाए तो 1 मिनट में 12 बार इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं हम लोग। अगर हम इसको पकड़कर नीचा कर दें, यानी अगर इसको पकड़कर डाउन करने के उसमें 1 मिनट में 10 कर दें, 9 कर दें, 8 कर दें, तो शायद वी आर रिलीव्ड। So very simply what we have to do, we have to we have to breathe, जो कि हम हमेशा कर रहे हैं, but consciously we have to breathe with counting. And counting in what way? अगर हम लोग 4-4 का ले सकते हैं, 4-6-6 का ले सकते हैं, whatever counting we can, our severity के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बहुत ज्यादा हाइपरवेंटिलेशन हो रहा है तो हम जस्ट थोड़ा सा कम करें, अगर कम हो रहा है तो हम ज्यादा भी कर सकते हैं। आई विल शो यू हाउ वी डू इट। हम जब इनहेल करते हैं एंड एक्सहेल करते हैं और बीच में हम होल्ड करते हैं, सो व्हाट वी कैन डू, बॉक्स ब्रीदिंग जिसको कहते हैं, कि हम 4 की काउंटिंग में हम इनहेल करेंगे 1 2 3 4, होल्ड करेंगे 1 2 3 4, एक्सहेल करेंगे 1 2 3 4 एंड फिर होल्ड करेंगे 1 2 3 4। इसको अगर हम कंटिन्यूअसली विथ काउंटिंग करेंगे तो थोड़ी देर में हम देखेंगे कि आर हाइपरवेंटिलेशन इज गॉन डाउन, आर रेस्पिरेटरी अराउजल हैज गॉन डाउन। और अगर हम इसको प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली वी कैन विन, वी कैन, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन होने पर भी हमको बहुत ज्यादा ये रेस्पिरेशन हाई नहीं होगा। दूसरा हो सकता है कि हम इनहेल 4 करें, 4 की काउंटिंग में करें, और जब एक्सहेल करें तो उसको 6 की काउंटिंग में करें ना, लाइक 1 2 3 4, आई हैव इनहेल्ड एंड 1 2 3 4 5 6, exhalation more than inhalation, so that when we exhale our carbon dioxide out, we can take more oxygen then. तो अगर हम इसको कॉन्शियसली नीचे कर देते हैं तो बिल्कुल बहुत आसानी से हमारा स्ट्रेस उस समय नीचे आ जाता है। इसको हम डेली प्रैक्टिस में भी ला सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रेस में बहुत सारी चीजें होती है जो आजकल शायद यंगस्टर्स बहुत जानते हैं, दे नो इट, दे डू इट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूंगी कि वर्कआउट, जो हम लोग वर्कआउट करते हैं, कुछ भी करें, कोई गेम खेलें, कोई किसी भी तरह का स्पोर्ट्स एक्टिविटी करें, स्विमिंग इज अ वेरी वेरी गुड एक्सरसाइज, gym is a very good exercise, any kind of workout, if we do it regularly, then this kind of arousal doesn't happen. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना भी हम बिजी हैं, हम कितना भी ड्यूटीज और अपने डेली लाइफ एंड अपने वर्क लाइफ में बिजी हैं, पर अपने लिए इतना टाइम प्रिवेंशन के लिए जरूर निकालें। As I said that our environment is full of stressful events. हम उनको बदल नहीं सकते, हम खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट 15 to 30 मिनट्स अपने लिए जरूर निकालें जब हम कोई किसी भी तरह का वर्कआउट, व्हाटएवर यू लाइक, किसी को स्विमिंग पसंद होगा, किसी को गेम्स एंड स्पोर्ट्स पसंद होगा, किसी को जिम पसंद होगा, किसी को योगा अच्छा लगता होगा, whatever you like you can do, but some time you have to spend for your body and mind. योग की हमने बात की। व्हाट इज योग? योग का जो प्रिंसिपल है वो ही यही है कि इट काम्स डाउन योर बॉडी एंड माइंड। तो जब बॉडी और माइंड दोनों को हम काम कर रहे हैं, हम रिलैक्स करने के मोड में ये इस
ऑब्जेक्टिव के साथ कर रहे हैं, तो नेचुरली जो हमने एक्सप्लेन किया वो हमको अराउजल नहीं होगा। सो दिस इज अ प्रिवेंशन व्हेन वी प्रैक्टिस योगा। तो बहुत जरूरी है कि कोई ना कोई वर्कआउट हम करें। दूसरी तरफ कुछ कुछ क्रिएटिव चीजें होती हैं, लाइक म्यूजिक, लाइक आर्ट, लाइक क्राफ्ट, like any creative kind of a thing, like writing or reading, जो भी क्रिएटिविटी आपको पसंद है वो हम अगर हम 5 मिनट से 10 मिनट भी एवरी डे उनको परस्यू करते हैं, बहुत कम समय के लिए भी, then also we get relaxed because those are the things which really gives us pleasure as well as calmness। तो बहुत इंपॉर्टेंट है म्यूजिक। आपने बहुत सुना होगा कि म्यूजिक से इतना रिलैक्स होता है बॉडी एंड माइंड कि कई बार इवन इंजेक्शंस के दर्द को कम कराया जा सकता है, इवन पेन, पोस्ट ऑप पेन्स को कम कराया जा सकता है। तो ये सारी चीजें जब जो मेडिकली होती ही हैं उनको कम करने के लिए रिसर्चेस हो रहे हैं कि रिलैक्सेशन मेथड से या मेडिटेशन से ये कम हो, या म्यूजिक से ये कम हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी स्ट्रेस के लिए हो सकती हैं। One more thing which I will want to say in prevention of stress, कि कई बार हम अपने अंदर बहुत चीजें एक्यूमुलेट करते हैं और उसको जमा करते हैं, बॉटल्ड अप करते हैं। We have to share. We have to share with one person at least in our life. कोई हमारे लाइफ में एक पर्सन ऐसा होगा जिसको हम अपने अंदर की चीज, जो मुझे फील हो रहा है, जो मुझे लग रहा है, जो मेरा परसेप्शन है, जैसे मैं चीजों को ले रही हूँ या ले रहा हूँ, उन चीजों को अगर हम न कह पाए, उन चीज को किसी एक के साथ हम शेयर कर पाए, तो भी हमारा स्ट्रेस डाउन हो जाता है या नहीं होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किसी ना किसी से शेयर करें। सोशलाइजेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रिवेंटिव मेथड्स, कि हम अपने आप में रहने के बजाय हम लोगों में जाएं, हम दूसरों को देखें, हम खुद भी अपनी चीजों को शेयर करें और अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग्स, अपनी चीजें, अपने ओपिनियन हम दूसरों के साथ शेयर करें, तो डेफिनेटली हम कर पाएंगे। लास्ट जो आई एम नॉट एबल टू सी द स्क्रीन एनीमोर, बट लास्ट जो मैं कहना चाह रही हूँ कि am I there still? Yeah. जो जो नेक्स्ट इंटरवेंशन टेक्निक है, I'll take another 5 minutes ना। हमारा जो वेगस नर्व है वो सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में फैला हुआ है ना, हेड टू टो ये नर्व हमारे बॉडी में है। Again, the researchers say that if we stimulate vagus nerve, हमारा इमीडिएट रिएक्शन होता है हमारा स्ट्रेस डाउन होने का ना। लाइक अगर बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, पसीना आ रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत हाई है, बहुत ज्यादा फिजियोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो रहा है, ऐसे में इफ वी स्विम, इफ वी गो डाउन इनटू द वाटर, हम देखते हैं कि पूरा वेगस नर्व स्टिमुलेट होता है और बिल्कुल से स्ट्रेस कम हो जाता है। इफ वी आर नॉट एबल टू गो फॉर स्विमिंग, हम सिर्फ बहुत ठंडा पानी स्प्लैश करें फेस पर, एंड जहां जहां वेगस नर्व जहां जहां से जा रहे हैं उनको वो भी नहीं मिलता है, हम एक रुमाल या स्मॉल हैंड टॉवल ठंडे पानी से निचोड़ लें और हम उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद फेस पर, कान में एंड गले के इन जगहों पर अगर हम स्टिमुलेट करते हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत जल्दी हमारा उस समय वो स्ट्रेस लेवल नीचे आने लगता है, हम सिंपैथेटिक से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरफ जाने लगते हैं। एंड लास्ट मैं कहना चाहूंगी कि माइंडफुलनेस टेक्निक शायद आप सब लोग को मालूम है। आई टेक इट, आई एक्चुअली ट्रेन इट फॉर पीपल, और उसका एक अलग ही सेशन होता है। अभी इस सेशन में मैं टेक्निक तो नहीं बता रही हूँ, पर मैं ये जरूर बता रही हूँ कि व्हाट इज द पर्पस। माइंडफुलनेस इज व्हाट? माइंडफुलनेस इज alertness and awareness. So being in the present is mindfulness.
अगर हम अपने आप को पास्ट या फ्यूचर से अलग करके प्रेजेंट में ले आते हैं कि what is happening in front of me, and वो प्रेजेंट कहाँ से आता है, हमारे फाइव सेंसेस ना, हमारे विजुअल यानी आंख, हमारे कान यानी हियरिंग, हमारे नाक यानी जो स्मेल का सेंसेशन है, टच का है, एंड एक और क्या है, नाक कान बोलना है ना, टेस्ट का. सो ये फाइव सेंसेस आर एक्चुअली कीप अस इन द प्रेजेंट. If we are in these five senses, if we stimulate these five senses and we are aware of these five senses, we are in present. मेरे सामने क्या हो रहा है, अगर मैं देखूं, एक देखूं कि सड़क से कैसे लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, that is the visual sensory stimulation, and we are in the present. ऐसे ही अगर मैं एक कमरे में बैठ जाऊं और सुनने की कोशिश करूं कि मुझे क्या सुनाई पड़ रहा है, माइन्यूट डिटेल्स ऑफ व्हाट आई कैन हियर, मैं देखूंगी कि मैं बिल्कुल फोकस करती हूँ छोटे से छोटी आवाज में ना. ऐसे ही सारे को हम कर सकते हैं और इसको हम अपने लाइफ सिचुएशंस में भी लेके आ सकते हैं. लाइक इफ वी आर अलर्ट इज व्हाट इज हैपनिंग अराउंड मी, तो हम ज्यादा ऑब्जर्वेंट हो जाते हैं, हम ज्यादा माइंडफुल रहते हैं, हमारा काम का फोकस ज्यादा हो जाता है, एंड नेचुरली वी आर मोर मोर प्रोडक्टिव इन एनी ऑफ आवर वर्क. तो इस तरह से अगर हम देखें कि हम स्ट्रेस को बहुत आसानी से कम कर सकते हैं, वी प्रैक्टिस इट रेगुलरली, few things which can actually decrease our stress. If there are, Dr. Payal, if there are any question, I can answer or discuss. Yes, we are open to questions now. Thank you, Kakuli ma'am, for such a wonderful presentation. I always look forward to your presentations Yes. because क्या है मैम, हमारी नर्सेज जो है हमेशा किसी ना किसी की केयर में ही लगी रहती हैं. दे आर ऑलवेज फॉर पेशेंट केयर एंड वी समहाउ फॉरगेट कि दे आल्सो हैव देयर मेंटल हेल्थ एक्चुअली शुड बी अप टू डेट. दीज डेज And I'm हम very, सिर्फ very और सिर्फ अपन ज्यादा काम या ज्यादा चीजों पे फोकस तभी कर सकते हैं व्हेन वी आर मेंटली हेल्थी. इमोशनल क्वेश्चन तो है ही, बट मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो वन थिंग विच वी शुड फोकस ऑन. एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आप हमेशा ऐसे प्रेजेंटेशंस बनाते हैं कि हमको खुद से एक्सप्लेन करना और उसको समझना कि एक्चुअली हाउ शुड वी मैनेज स्ट्रेस एंड व्हाट शुड बी द टिप्स एंड ट्रिक्स कि हम कैसे अपने स्ट्रेस को, कोई भी लेवल का स्ट्रेस हो, हर किसी को हो सकता है, तो उसको कैसे मैनेज करना है. Any questions? We are okay with any questions if our nurses want to ask something. No, I don't think so. They are all very, they are healthy. either they don't feel like a questioning, or they have no stress now. Thankful. Second part तो ज़्यादा अच्छा है मैम. ठीक है मैम, I'll conclude. I would like to thank you for a very wonderful presentation. And thank you to our organizer. Special thanks to Dr. Pankaj sir. He's the president of IFS. Our secretary ma'am, Dr. Sonali Mittal. Shweta Mittal ma'am. And to our chapter secretary, Dr. Priya ma'am, for giving such platform for our nurses also so that they can have such sessions जिसमें उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, वो बाद में भी इसको जाकर, because we have our recording sessions on uploaded on YouTube, so they can listen to this after this session also. So thank you so much, ma'am. Thank you so much. Actually, thank you so much from my side, and I like to be with all of you again. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, everyone.